and a very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. So, class, today we all are going to continue our chapter number 5 of your civics textbook, and the name of your chapter is Women Change the World. In our last class, we started this chapter. We categorized different occupation under male and female according to our imagination, and we talked about it and why this that was happening, why we are creating that thing, why we are having that images. For example, we have an image of nurse. We have an image of female if we talk about nurse. Then why it is happening? Because of the stereotypes and because of the occupations, because of the because of the categorization of occupations by the society. And after that we talked about Lakshmi Lakra also, and her contribution in breaking stereotypes. So now there is a conversation given on page number 58 of your civics book. Just open your book and look. Xavier was happy with the results of his class 10th board exams. Though his marks in science and maths were not high, he had done well in his favorite subjects, history and languages. When his parents saw his report card, however, they did not look pleased at all. Now Xavier क्लास 10th का उसने एग्जाम दिया था, बोर्ड एग्जाम्स दिया था, and after the declaration of its result he was quite happy, but though his marks in science and maths were not high, but he had done in his favorites. He had done well in his favorite subjects, like history and languages. But when his parents saw his report card, they were not happy at all. They were not so happy because of the marks he gained in physics, or you can say science and maths. Okay, so now here is the conversation between Xavier's mother and Xavier. My goodness, Xavier, you have managed only 65% in maths. Your marks in physics are too low. So now she is like, she's shocked. Xavier, you only managed to get 65% in 65% in maths. उसने कहा कि आप only 65% ही लेकर आए हो, and physics में भी आपके marks जो है बहुत कम है. तो Xavier was replying, I know, Mama, but it's okay because I don't want to take maths or science. I want to study history. Now Xavier is replying, Mama, it is totally okay for me because I don't want to pursue my studies in science or maths. I want to study history. मेरे को history पढ़ना है, मेरे को science और maths आगे pursue ही नहीं करना है, आगे पढ़ना ही नहीं है, तो it's okay. It's totally okay if I manage to get these marks. Then his father is saying, why do you want to take history? Think about your future, dear. You have to get a good job. History will not help. It has no scope. Now his father is saying, why do you want to take history, and why do you want to pursue history? Why do you want to study history? Think about your future. There is no scope in history. If you really want to get a good job, good salaried job, you have to study science or maths or history. तो history से आपको एक अच्छी job नहीं मिल पाएगी. It has no scope. But I don't like maths or science. Now Xavier is saying, I don't like maths or science. मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है. मैं अगर एक like उसके thinking है, अगर मैं पढ़ भी लेता हूँ तो फिर I don't know मैं अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं, because I really don't like history, science or maths. Be sensible, son. Take maths and you can study computers side by side. The job market for computers is very good. Now his mama is saying, be sensible, मैथ्स ले लो, साथ में कंप्यूटर्स पढ़ लेना साइड में, तो कंप्यूटर्स के लिए जो मार्केट है, जॉब्स जो है, अच्छी सैलरी जॉब्स जो है, आपको बहुत अच्छी सैलरी की जॉब भी मिल जाएगी. ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी एक स्टीरियोटाइप क्रिएट किया गया है कि बॉय है, ठीक है, आपको अच्छी सैलरी जॉब नहीं मिलेगी, इसलिए साइंस लो, मैथ्स लो. तो ये भी एक कन्वर्सेशन देखते हैं हम. ठीक है,
Now next, just look at page number 59. Learning for change. Learning for change. So before that, एक यहाँ पे पैराग्राफ है लर्निंग फॉर चेंज में. अच्छा चलो पहले यही पढ़ लेते हैं. लर्निंग फॉर चेंज. Going to school is an extremely important part of your life. As more and more children enter school every year, we begin to think that it is normal for all children to go to school. Today, it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds or not appropriate for some children. But in the past, the skill of reading and writing was known to only a few. So now, in today's era, like going to school is obviously a very important part of our life. हमारे life का बहुत ही important part है. We can't imagine our life without going to the school. Okay, so आज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा children क्या कर रहे हैं, हर साल स्कूल में enter करते हैं and we begin it's normal. हमें लगता है कि हाँ ठीक है, बच्चा है स्कूल तो जाएगा, ये बहुत normal है. But आज के टाइम पे हमारे लिए ये नॉर्मल है, बट बहुत साल पहले जो है बहुत इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बाउंड्स. और ऑब्वियसली हमारे लिए ये सोचना बहुत ही मतलब कि बोलेंगे कि स्कूल नहीं भेजा जाते थे पहले लोग, या स्कूल जाना भी बहुत डिफिकल्ट होता था, लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था. हमारे लिए ये इमेजिन करना बहुत ही मतलब कि हम बहुत डिफिकल्ट है. और हम ये सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा सोचा करते थे कि कुछ बच्चों को पढ़ाया जाता था और कुछ बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता था. सो प्रायर व्हाट हैपेंड, पास्ट में क्या होता था, प्रायरली जो ये रीडिंग और राइटिंग के स्किल थे ना, वो खाली कुछ लोगों के पास में ही थी, कुछ लोग ही जानते थे. एंड मोस्ट चिल्ड्रन learn the work their families or elders did. और जितने भी चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, वो अपना काम जो है, जो भी सीखना होता था, अगर कुकिंग सीखनी है, पॉटरी सीखना है, पेंटिंग सीखना है, तो अपने फैमिली के हेल्प से वो क्या करते थे, सीख लेते थे, अपने एल्डर्स की हेल्प से कर लेते थे. For girls the situation was worse. In communities that taught sons to read and write, daughters were not allowed to learn. Even कुछ कम्युनिटीज में जहाँ पे एजुकेशन मतलब कि ये जो रीडिंग राइटिंग जो है अलाउड था, उसमें भी, या फिर जहाँ पे लोग बोलते थे, इंपॉर्टेंस देते थे रीडिंग राइटिंग स्किल्स को, वहां पे भी ओनली बॉयज को अलाउड था कि आप स्कूल जा सकते हो. गर्ल्स के लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी और बहुत ज्यादा वर्स थी. So in communities that taught sons to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabet. Daughters को, लड़कियों को, बेटियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था. Even in families where skills like pottery, weaving and craft were taught, the contribution of daughters and women was only seen as supportive. For example, in the pottery trade, women collected the mud and prepared the earth for the pots. But since they did not operate the wheel, they were not seen as potters. Now, इन सम फैमिलीज जहाँ पे पॉटरी हुआ करता था, वीविंग हो गया, ठीक है, क्राफ्ट हो गया, अलग अलग तरीके के कारपेंट्री हो गई, तो वहां पे भी जो कंट्रीब्यूशन होता था डॉटर्स का या फिर औरतों का, वुमेन का, तो वो एक सपोर्टिव रोल ही माना जाता था. उसको ऐसा नहीं माना जाता था कि वो कोई काम कर रहे हैं, उनको जस्ट एक सपोर्टिव वर्क माना जाता था. देखिए एग्जाम्पल देखिए, पॉटरी ट्रेड में जो मटके बनाते हैं, जो कुम्हार होते हैं जो मटके बनाते हैं, वो उसमें जो क्ले होता है, मड यूज करते हैं मटके बनाने के लिए. वो मड कौन कलेक्ट करके लेकर आता है, वो वुमेन कलेक्ट करके लेकर आती है. जो प्रिपेयर द अर्थ, उसके लिए वो पूरा जो क्ले है प्रिपेयर करती है कि पॉट्स बनाने के लिए हमें कितना मड चाहिए होगा, कितना उसमें पानी डालना है, ये सारी चीजें भी क्या करती है, वुमेन बनाती है. बट उनको व्हील चलाना नहीं आता कि हमें कैसे इसको ऑपरेट करना है, हमें कैसे मटके बनाने हैं उस व्हील में. तो दैट्स व्हाई उसको क्या कंसिडर किया गया है कि उनको पॉटर्स कंसिडर नहीं किया गया, उनको एक एज अ सपोर्टिव मटेरियल या एज अ सपोर्टिव मेंबर ही माना गया है, उनको पॉटर की तरह नहीं माना गया है. ठीक है. So in the 19th century, many new ideas about education and learning emerged.
Schools became more common, and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school. But there was a lot of opposition to educating girls even then. Yet many women and men made efforts to open schools for girls. Women struggle to learn to read and write. Now in the 19th century जो एजुकेशन के लिए लर्निंग के लिए बहुत सारे न्यू आइडियाज जो है एमर्ज हुए, आए सामने. स्कूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका था, स्कूल कॉमन भी हो चुका था, एंड कम्युनिटीज जो हम कम्युनिटीज जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजती थी, उन्होंने भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया था. बट गर्ल्स को पढ़ाने के लिए फिर भी जो है बहुत ऑपोजिशन हुआ. ठीक है, बहुत सारे इवन जो औरतें थी, इवन मेन ने भी क्या है बहुत एफर्ट्स लगाए कि हम लड़कियों के लिए भी स्कूल्स को ओपन करते हैं, और वुमेन ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत प्रॉब्लम्स फेस की है पढ़ने और लिखने के लिए. ठीक है, अभी हम 3 एग्जांपल्स पढ़ेंगे. वी विल study 3 examples of 3 women: Ramabai, Rokia Shekhawat Hussain, and Rashundri Devi. We will talk about these women from the 19th century. So now just look at this picture. This is the picture of Ramabai, and this picture is with her daughter. Okay, I don't know the name of her daughter, but she is her daughter, and she is Ramabai. So Ramabai, 1858 to 1922. Now these dates, these years symbolizes, or you can say these dates are representing the birth year and the death year. तो रामाबाई 1858 में इनका बर्थ हुआ था और 1922 में इनकी डेथ हुई थी. Shown above with her daughter, championed the cause of women's education. She never went to school but learned to read and write from her parents. She was given the title Pandita because she could read and write Sanskrit, a remarkable achievement as women then were not allowed such knowledge. She went on to set up a mission in Khedagaon near Pune in 1898, where widows and poor women were encouraged not only to become literate but to be independent. They were taught a variety of skills from carpentry to running a printing press, skills that are not usually taught to girls even today. The printing press can be seen in the picture on the top left corner. Ramabai's mission is still active today. अब देखिए रामाबाई जो है अपने बेटी के साथ यहाँ पे उनकी एक पिक्चर गिवन है, एंड शी चैंपियन द कॉज ऑफ, शी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगरिन फॉर वुमेन्स एजुकेशन. औरतों की एजुकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है इन्होंने प्ले किया है. She never went to school but learned to read and write from her parents. अब देखिए वो कभी भी स्कूल नहीं गए, बट उन्होंने अपने पेरेंट्स से, उन्होंने अपने फादर मदर से पढ़ना और लिखना सीखा. उनको पंडिता का टाइटल दिया गया. ठीक है, उनको किस चीज का टाइटल दिया गया? पंडिता का टाइटल दिया गया. Why? Because she could read and write Sanskrit. ठीक है, वो संस्कृत को पढ़ लिख सकती थी, और उस टाइम पे, स्पेशली उस टाइम पे तो वुमेन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी कि अगर उनको इतनी नॉलेज हुआ करती थी तो. उसके बाद पुणे के पास खेड़ा गांव है. खेड़ा गांव में एक मिशन स्टार्ट हुआ 1898 में. उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया जहां पे विडोज हो गई, पुअर वुमेन हो गए, उनको एनकरेज किया, उन्होंने मोटिवेट किया कि आपको खाली पढ़ने लिखने के लिए ही नहीं, बट इंडिपेंडेंट, कि आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए. इस चीज के लिए उन्होंने वहां पे उनको मोटिवेट किया खेड़ा गांव में, स्पेशली खेड़ा गांव में. ठीक है, दे वर टॉट अ वैरायटी ऑफ स्किल्स. आज भी हमें ये जो स्किल्स हैं, हम नहीं देखते हैं कि वुमेन को ऐसे स्किल्स सिखाई जाती है कि उनको बोला जा रहा है कि आप कारपेंट्री सीखिए. आपको कोई पता है कि आपने कभी कोई वुमेन कारपेंटर देखा है जो फर्नीचर बनाना है? मैंने तो नहीं देखा. ठीक है, हम बहुत ही रेयरली देख पाते हैं. तो बट उस टाइम पे भी, मतलब आज से 120 years अगो, मतलब उस टाइम पे भी रामाबाई ने जो है इन स्किल्स के लिए क्या किया था, उनको विडोज को, पुअर वुमेन को सिखाया करती थी कि आप प्रिंटिंग प्रेस चलाना सीखिए, आप
कारपेंट्री कीजिए। इवन ये वाले स्किल्स जो है आज भी लड़कियों को नहीं सिखाई जाती है। सो ये जो प्रिंटिंग प्रेस हम देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये रामाबाई ने ये प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की थी, और ये वाला जो रामाबाई का मिशन है ये आज भी जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। ठीक है, सो नाउ अभी हमने रामाबाई की पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं रशुंधरी देवी की एक स्टोरी। लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ रशुंधरी देवी 1800 to 1890, who was born in West Bengal some 200 years ago. At the age of 60, she wrote her autobiography. Now, what do you mean by autobiography? Autobiography means when a person writes about his or her life, and that book is known as autobiography. And biography, when a person writes about the life of another person's, that book is known as biography. जब कोई इंसान अपनी खुद की जीवनी, अपनी खुद की लाइफ के बारे में कोई बुक लिखता है, अपनी खुद की लाइफ को लिखता है एक बुक में, तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और अगर कोई और आपकी लाइफ के बारे में लिखता है तो उसको हम बायोग्राफी बोलते हैं। So at the age of 60, she wrote her autobiography in Bangla. बंगला में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। उनकी बुक का टाइटल क्या था? Her book titled अमर जीबान is the first known autobiography written by an Indian woman. Now underline this statement. If you have book with you right now, underline this statement. अमर जीबान is the first known autobiography written by an Indian woman. किसी भी इंडियन वुमेन ने अगर कोई ऑटोबायोग्राफी लिखी है तो ये फर्स्ट नोन मतलब अभी तक हमें जितना भी पता चला है उसमें से अमर जीबान जो है पहली एक ऐसी बायोग्राफी है जो इंडियन वुमेन, ऑटोबायोग्राफी है जो इंडियन वुमेन ने लिखी है। Rashundri Devi was a housewife from a rich landlord's family. At that time, it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck to her husband and become a widow. Despite this, she taught herself how to read and write in secret well after her marriage. So, Rashundri Devi जो है एक landlord के फैमिली में एक हाउसवाइफ थी, एंड उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि अगर वुमेन जो है, औरतें अगर पढ़ लिख लेती है तो वो अपने हस्बैंड्स के लिए बैड लक लेकर आती है। ठीक है, और वो विडो बन जाती है, उनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है। फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने आप को पढ़ाया लिखाया, सीक्रेट में चोरी छुपे वो पढ़ती थी लिखती थी, और वो भी अपनी शादी के बाद में। सो ये रामाबाई की रशुंधरी देवी की कुछ लाइंस है। I would start working at dawn and I would still be at it until well beyond midnight. I had no rest in between. I was only 14 years old at that time. I came to nurture a great longing. I would learn to read and I would read a religious manuscript. I was unlucky in those days. Women were not educated. Later, I began to resent my own thoughts. What is wrong with me? Women do not read. How will I do it? Then I had a dream. I was reading the manuscript of Chaitanya Bhagavat, The Life of a Saint. Later in the day, as I sat cooking in the kitchen, I heard my husband say to my eldest son, Bipin, I have left my Chaitanya Bhagavat here. When I asked for it, bring it in. He left the book there and went away. When the book had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully. It was a job hiding it, for nobody must find it in my hands. My eldest son was practicing his alphabets at that time. I hid one of them as well. At times, I went over that, trying to match letters from that page with the letters that I remembered. I also tried to match the words with those that I would hear in the course of my days. With the tremendous care and effort, and over a long period of time, I learned how to read and write. Now, Rashundri Devi is saying, like, मैं अपना जो काम था, I would start working at dawn. Dawn मतलब कि जो सूर्य सनराइज का टाइम होता है ना, उस टाइम की बात की जा रही है।
कि सनराइज होते ही, सनराइज इवन सनराइज से पहले ही मैं क्या करती थी, मेरा जो है दिन स्टार्ट हो जाता था, मैं काम करने लग जाती थी एंड मिडनाइट तक, आधी रात तक मैं काम करती रहती थी। बीच में मुझे कभी भी रेस्ट नहीं मिलता था। और उस टाइम मैं ओनली 14 ईयर्स की थी, देखो 14 साल की थी जब उनकी शादी हो गई थी, उससे भी पहले ही हो गई होगी। मैं उस टाइम पे ओनली 14 ईयर्स की थी एंड आई केम टू नर्चर अ ग्रेट लॉन्गिंग, ठीक है। बट मुझे तो मैं, भगवान ने मेरा जन्म तो बहुत ही अच्छी चीजों के लिए किया है, तो मैं पढ़ना चाहती हूँ। और मैं एक रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट व्हाट डू यू मीन बाय मैन्यूस्क्रिप्ट? मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जो हाथों से लिखा हुआ होते हैं, हाथों से लिखी हुई किताब होती है, उसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। किताब बोल दो या फिर डायरी बोल दो, कुछ भी जो हाथों से लिखा हुआ होता है, दैट इज नोन एज मैन्यूस्क्रिप्ट। तो मैं एक रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ना चाहती हूँ। आई वॉज अनलकी, बट मैं तो अनलकी हूँ क्योंकि उस टाइम पे औरतों को जो है पढ़ाया नहीं जाता था, एजुकेट नहीं किया जाता था। फिर से मैं अपने थॉट्स को घुमाने फिराने लग जाती थी और मैं बोलने लग जाती थी, ये मेरे साथ क्या गलत, ये क्या हो रहा है, मैं इतना गलत, कुछ गलत हो गया है, मैं वुमेन तो पढ़ लिख सकती ही नहीं है, मैं कैसे पढ़ सकती हूँ। फिर एक दिन मुझे एक सपना आया, आई हैड अ ड्रीम, आई वॉज रीडिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भागवत। मैं मैन्यूस्क्रिप्ट, चैतन्य भागवत जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, चैतन्य भागवत एक बुक का नाम है जिसमें एक साधु की लाइफ के बारे में गिवन है, मैं वो पढ़ रही थी। मतलब मुझे एक सपना आया और उसी दिन क्या हुआ, मैं जब खाना बनाने के लिए किचन में गई, मैं घुसी तो मैंने अपने हस्बैंड की आवाज सुनी। वो मेरे बड़े बेटे को बुला रहा था कि बेबन मैंने अपनी चैतन्य भागवत वहां छोड़ दी है, तुम आते हुए ले आना। जब व्हेन आई आस्क फॉर इट ब्रिंग इट इन, ठीक है। He left the book there and went away, और वो उसने अपनी बुक वहीं पे छोड़ दी और चला गया। When the book had been taken inside, I secretly took out a page and hide it carefully. और जब उस बुक को जब उस बुक को अंदर लेके गए तो मैंने क्या किया, सीक्रेटली छुपके से उसमें से एक पेज निकाला और छुपा लिया उसे। और उस टाइम पे भी जो एक पेज को छुपाना एक बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था, क्योंकि कोई भी अगर उसे पेज के साथ देख लेता तो वो बहुत ही बुरी कंडीशन होती उस टाइम पे। तो उसके जो एल्डेस्ट सन था बेपिन, उस टाइम पे अपने अल्फाबेट्स मतलब बांग्ला में ही अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, अल्फाबेट्स सीख रहा था। और तो मैंने उसके एक अल्फाबेट्स की भी एक पेज को क्या है छुपा लिया था। कभी कभी मैं उनसे सुन लिया करती थी वो जो बोलते थे, और वो जब अल्फाबेट्स की प्रैक्टिस करता था तो फिर मैंने क्या किया, मैं उसके बाद में उसे मैच करने की कोशिश किया करती थी, और जो भी याद रहता था उसे मैच करने की कोशिश करती थी। और जो भी वर्ड मैच हो जाता था, फिर मैं उसे चैतन्य भागवत में भी पढ़ने की कोशिश करती थी, ठीक है। और उस टाइम पे ये बहुत ही मतलब केयरफुली जो है, पढ़ना लिखना अलाउड नहीं, तो बहुत ही केयरफुली ऐसे चुपके से पढ़ना पड़ता था। So after learning the alphabet, रशुंद्री देवी was able to read the चैतन्य भागवत। Obviously अब अल्फाबेट उन्होंने सीख लिया, तो उसके बाद उन्होंने चैतन्य भागवत को पढ़ना स्टार्ट किया। Through her own writing, she also gave the world an opportunity to read about women's life in those days. अब उन्होंने जो ये खुद की उनकी जो अमर जीवन है, उसके वजह से लोग और भी दूसरी औरतों को भी जो है एक अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिला उस टाइम पे कि वो भी क्या करे, लिखना स्टार्ट करे। रशुंद्री देवी ने अपनी बुक में अमर जीवन में अपनी डेली लाइफ के बारे में, डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है। There were days when she did not have a moment's rest, no time even to sit down and eat. उस टाइम पे कुछ दिन तो ऐसे होते थे जब उसे एक मिनट का भी उनको रेस्ट नहीं होता था। वो इवन इतना भी नहीं टाइम मिलता था कि वो बैठ के क्या कर सके, खाना खा सके, ठीक है। अब एक और वुमेन की जो है हम स्टोरी पढ़ेंगे। दैट्स वुमेन्स नेम इज रोकेया शेखावत हुसैन एंड हर ड्रीम्स अबाउट लेडीलैंड। Okay, but we will talk about Rokeya Shekhawat Hussain in our next class.
So go through it, go through these two topics of today, learning for change. After that we talked about Ramabai and Rukia Shekhawat Hussain. अगर इसमें कोई doubt आता है, कोई भी problem आती है, do let me know. And in our next class, we will talk about Rukia Shekhawat Hussain and the further topics. Thank you so much, class. Bye bye. Take care.